Okay, so now today we are starting our next chapter, and this is our second chapter of. So this is our second chapter of unit genetics and evolution. The first chapter of this unit we have already completed, and that chapter was the principles of inheritance and variation. So that chapter we have completed, and in the last lecture we have also done the MCQs on the same chapter. So this is the second chapter of genetics unit, and again there are chances of near about 3 to 4 questions in the NEET exam from this particular chapter. And in this chapter what we are going to study, first of all I would like to summarize the basic points or the sub-units which we will study under the heading of molecular basis of inheritance. See, in this chapter we are going to study about the nucleic acid, and under nucleic acid, both the types of nucleic acid, we will study the structure of DNA, structure of RNA along with their types and functions, then replication of DNA, protein synthesis. All these topics we will study here, and the structure of genetic code, their salient features, then regulation of gene expression, and in the last part we will study about the genomics, the human genome project, and DNA fingerprinting. So these are the few sub points which we will cover under molecular basis of inheritance. So first of all we will start with the nucleic acid, because the basic units of either DNA or RNA, they are the nucleic acid. So nucleotides. So first we will study about the nucleic acid. Now nucleic acid. Nucleic acid, as the name suggests, it is present inside the nucleus and acid due to its chemical nature. It is acidic in nature, so that's why they are called nucleic acids. Now these nucleic acids, it was first time discovered in 1869 by Frederick मिशर in the pus cells, that is in the WBCs. तो इनको 1869 में फ्रेडरिक मिशर ने WBCs के अंदर डिस्कवर किया था, आइडेंटिफाई किया था, बट ही डू नॉट गिव द टर्म न्यूक्लिक एसिड. तो उसने इनको आइडेंटिफाई किया. ही आइडेंटिफाइड दैट इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ WBC देयर इज सम एसिडिक मटेरियल और एसिड रिच मटेरियल प्रेजेंट. ही गिव द टर्म न्यूक्लीन. उसने उसके लिए टर्म न्यूक्लीन इंट्रोड्यूस की. तो न्यूक्लीन जो है उसने न्यूक्लिक एसिड को ही बोला था. और फिर 1889 के टाइम पर अल्टमैन नाम का एक साइंटिस्ट था, उसने टर्म यूज की थी न्यूक्लिक एसिड. सो ही यूज द टर्म न्यूक्लिक एसिड. लेटर ऑन it was identified that this nucleic acid it is of two type. तो न्यूक्लिक एसिड जो है वो दो टाइप के होते हैं जो कि बाद में आइडेंटिफाई हुए. एक जो होता है जिसको हम कहते हैं डीएनए, दैट इज डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, और दूसरा जो होता है इट इज आरएनए, दैट इज द राइबोज न्यूक्लिक एसिड. सो दीज आर द टू टाइप्स ऑफ न्यूक्लीन और द न्यूक्लिक एसिड which were later identified. Now we will study the basic components of nucleic acid. So nucleic acid or nuclein, whether it is a DNA or RNA, both of these, they are the polymeric compound. They are the polymers of some basic unit. जैसे हमने स्टडी किया है कि प्रोटीन्स जो होते हैं they are the polymers of amino acid. ऐसे ही पॉलीसेक्राइड्स जो होते हैं दे आर द पॉलीमर्स ऑफ मोनोसेक्राइड सिंपल शुगर.
ऐसे ही ये भी जो है वो मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं, एंड दे आर मेड अप ऑफ सम स्मॉल रिपीटिंग यूनिट्स, एंड दीज यूनिट्स दे आर कॉल्ड एज द न्यूक्लियोटाइड्स. So nucleotides are the basic units of nucleic acid. Now a single nucleotide, we will study the structure of nucleotide with the help of the diagram, but first I will classify the components which are present in the nucleotide. So in the nucleotide there are two main parts. The first we call nucleoside and the phosphate group. Nucleoside and phosphate group. And what is there inside the nucleoside? Nucleoside के अंदर क्या है? Nucleoside जो होता है, it consists of two subcomponents. It is the pentose sugar and nitrogenous base. There are two possibilities of this pentose sugar. It is a 5 carbon sugar, and there are two possibilities of the pentose sugar depending upon the type of nucleic acid. The pentose sugar, it may be of ribose type, so we called it as the ribose pentose sugar. तो जो राइबोस पेंटोस शुगर होती है उसमें 5 कार्बन, 10 हाइड्रोजन और 5 ऑक्सीजन. तो इसको हम इस तरह से लिखते हैं C5H10O5. It is the ribose type of pentose sugar. Then the pentose sugar may be of deoxyribose. The deoxyribose pentose sugar, it has one oxygen less as compared to the ribose pentose sugar. So its molecular formula is C5H10O4. So this is the deoxyribose pentose sugar. The ribose pentose sugar, it is the component of the RNA, and the deoxyribose pentose sugar, it is the component of DNA. Now the deoxyribose pentose sugar, जो एक ऑक्सीजन यहाँ पर कम होता है वो सेकेंड वाले कार्बन पर से कम होता है. So that's why we also called the pentose sugar in the DNA as 2-deoxyribose. DNA के अंदर जो पेंटोज शुगर होती है उसको 2-deoxyribose भी बोलते हैं. उसका रीजन ये है कि सेकेंड वाले कार्बन पर से जो है एक ऑक्सीजन कम होता है, वहां पर OH की जगह पर H होता है और राइबोस में वहां पर OH होता है. अभी हम लोग जो है वो स्ट्रक्चर देखते हैं. देन नाइट्रोजनस बेस. नाइट्रोजनस बेस के अंदर भी जो है वो दो पॉसिबिलिटी है. दे आर द रिंग स्ट्रक्चर्स. नाइट्रोजनस बेस के अंदर जो दो पॉसिबिलिटी है, द नाइट्रोजन बेस, इट मे बी प्यूरीन और इट मे बी pyrimidine. So purine जो होता है it is a double ring structure and pyrimidine जो है it is a single ring structure, or we called it as the monocyclic structure and it is the dicyclic structure. Now purine के अंदर भी जो है वो दो सब टाइप्स हैं. उसके अंदर में it is adenine or guanine. Then under pyrimidine there are three possibilities.
may be cytosine or it may be thymine, or in case of RNA there is uracil. So these are the two types of the nitrogenous bases, and under nitrogenous bases प्यूरीन, दो टाइप के प्यूरीन है, एडेनाइन एंड ग्वानिन, और तीन टाइप के पाइरिमिडीन है, साइटोसिन, थाइमिन एंड यूरेसिल. तो ये है. और फॉस्फेट ग्रुप जो होता है ये डिराइव होता है फॉस्फोरिक एसिड से. मतलब जो फॉस्फोरिक एसिड होता है H3PO4, उसकी वजह से फॉस्फोरिक एसिड से ही जो है फॉस्फेट ग्रुप डिराइव होता है. और इसको हम लोग जो है ये देखेंगे कि ये कंपोनेंट कहाँ पर अटैच होते हैं विद द हेल्प ऑफ द प्रोजेक्टर. हम डायग्राम प्रोजेक्ट करते हैं प्रोजेक्टर पर, और वहाँ पर हम देखते हैं कि कहाँ कहाँ पर कौन कौन से जो कंपोनेंट्स हैं वो अटैच होते हैं. कर दिया. Okay, so here on the projector the diagram of nucleotide is shown. न्यूक्लियोटाइड जो होता है इट इज द बेसिक कंपोनेंट ऑफ बोथ डीएनए एंड आरएनए, दोनों का बेसिक कंपोनेंट है. तो यहाँ पर हम जो है वो न्यूक्लियोटाइड के वो कंपोनेंट्स देख रहे हैं जो हमने वहाँ बोर्ड पर लिखा था अभी. तो यहाँ पर कंपोनेंट्स शो किए हुए हैं. सो देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड, 3 पार्ट्स हैं जैसा कि वहाँ पर लिखे थे. ये जो इतना पार्ट है, ये वाला पार्ट देख रहे हैं जो हम, ये इतना पूरा मतलब पेंटोज शुगर और साथ में उसके पेंटोज शुगर और साथ में ये इधर का पार्ट, पेंटोज शुगर और नाइट्रोजनस बेस वाला पार्ट. तो ये मिला करके मतलब शुगर प्लस बेस, इसको हम लोग दोनों को मिला करके बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड. और फिर न्यूक्लियोसाइड के ऊपर फॉस्फेट ग्रुप यहाँ पर हम देख रहे हैं अटैच्ड है. तो हम इसके एक एक कंपोनेंट को देखते हैं. सो ये जो मिडल पार्ट देख रहे हैं दिस इज कॉल्ड एज द पेंटोज शुगर. नाउ पेंटोज शुगर इट कंसिस्ट ऑफ 5 कार्बन शुगर, 5 कार्बन वाली शुगर है. यहाँ पर देख रहे हैं ये फ्यूरन शुगर है, यहाँ पर ऑक्सीजन है. और ये जो कॉर्नर्स हैं, ये कॉर्नर हो गया, ये है, ये है, ये जो कॉर्नर्स हैं दे आर द कार्बन. तो यहाँ पर जो है ये फर्स्ट कार्बन है, दिस इज द फर्स्ट कार्बन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ कार्बन एंड दिस कार्बन इज द 5th कार्बन. तो ये 5 कार्बन है यहाँ पर. अब इसमें हमको देखना है कि फर्स्ट कार्बन के ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ पे फर्स्ट कार्बन, एट द फर्स्ट कार्बन अ रिंग इज अटैच. यहाँ पर एक रिंग अटैच है एंड दिस इज द नाइट्रोजन बेस. तो यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर एडेनाइन लिया गया है. ये एडेनाइन नाइट्रोजन बेस का स्ट्रक्चर है. तो यहाँ एडेनाइन भी हो सकता है, ग्वानिन भी हो सकता है, साइटोसिन भी हो सकता है, थाइमिन भी हो सकता है, और अगर आरएनए है तो यहाँ पर यूरेसिल भी हो सकता है. तो ये यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर एडेनाइन लिया हुआ है. सो दिस इज द नाइट्रोजन बेस. नाउ नाइट्रोजन बेस इज अटैच्ड विद द फर्स्ट कार्बन ऑफ पेंटोज शुगर. द बॉन्ड विच एग्जिस्ट हियर, ये वाला जो बॉन्ड देख रहे हैं हम लोग, ये वाला बॉन्ड, तो ये जो बॉन्ड इसको कनेक्ट करता है नाइट्रोजन बेस को और पेंटोज शुगर को. दिस बॉन्ड इट इज कॉल्ड एज द एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड. दिस इज कॉल्ड एन ग्लाइकोसाइडिक या सिंपली ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बोलते हैं ये वाले बॉन्ड को. फिर सेकेंड वाले कार्बन पर हम देख रहे हैं यहाँ पर एक हाइड्रोजन दिखाया हुआ है. सो दिस इज द हाइड्रोजन. यहाँ पर जो है OH भी हो सकता है, मतलब ये H के साथ में यहाँ पर ऑक्सीजन भी आ सकता है. तो अगर यहाँ पर ऑक्सीजन आता है तो ये जो पेंटोज शुगर होती है ये हो जाती है राइबोज पेंटोज शुगर. और अगर यहाँ पर से जो है वो ऑक्सीजन हटा देते हैं या ऑक्सीजन नहीं रहता है यहाँ पर, तो ये पेंटोज शुगर हो जाती है डीऑक्सीराइबोज पेंटोज शुगर. सो इन दिस डायग्राम यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है, सो इट इज अ डीऑक्सीराइबोज पेंटोज शुगर. ये डीऑक्सीराइबोज पेंटोज शुगर है. देन ये जो डीऑक्सीराइबोज पेंटोज शुगर होती है ये डीएनए का कंपोनेंट है. और अगर यहाँ पर O है, OH मतलब है पूरा, तो ये आरएनए का कंपोनेंट बनेगी.
डीऑक्सीराइबोस पेंटोज शुगर का होना डीएनए के अंदर, ये डीएनए को जो है वो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। आरएनए के अंदर जो OH ग्रुप यहाँ पर होता है तो वो रिएक्टिव होता है, तो इसीलिए आरएनए को जो है एज अ जेनेटिक मटेरियल जो है वो इवोल्यूशन में प्रीफर नहीं किया गया। नेक्स्ट, ये जो थर्ड कार्बन है जिसके ऊपर यहाँ पर OH ग्रुप है, सो ऑलवेज यहाँ पर चाहे वो डीऑक्सीराइबोस हो या राइबोस पेंटोज शुगर हो, यहाँ पर OH ग्रुप ही होता है। एंड दिस OH ग्रुप इज अटैच्ड टू द नेक्स्ट नाइट्रोजन नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड। यहां से ये OH ग्रुप जो है वो अगले न्यूक्लियोटाइड के 5th वाले कार्बन से अटैच होता है। तो दो न्यूक्लियोटाइड जहां पर एक दूसरे से अटैच होते हैं, जब पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनना स्टार्ट होती है डीएनए या आरएनए की, तो उनके बीच में जो बॉन्ड एग्जिस्ट करता है, दैट बॉन्ड इज कॉल्ड एज द फॉस्फोडाइईस्टर बॉन्ड। वी विल स्टडी द फॉस्फोडाइईस्टर बॉन्ड अलोंग विद द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। देन नेक्स्ट हम देखेंगे कि 4th कार्बन से 5th वाला कार्बन जुड़ा हुआ है, जो कि यहाँ पर CH3 होता है फॉस्फेट ग्रुप के जुड़ने से पहले, और फिर एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके ये पूरा फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता है। तो फॉस्फेट ग्रुप जो होता है ये समझो अपना यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड का थर्ड कंपोनेंट है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। तो फॉस्फेट ग्रुप जो है PO4 ग्रुप है। अब ये PO4 ग्रुप जो डिराइव होता है ये फॉस्फोरिक एसिड की वजह से होता है, और इसी PO4 ग्रुप की वजह से डीएनए और आरएनए दोनों को के पास में जो है वो नेगेटिव चार्जेस रहते हैं और एसिडिक उनका नेचर भी होता है। तो यहाँ पर अभी जो है ये फर्स्ट वाले कार्बन पर हम देख रहे हैं कि कोई नाइट्रोजन बेस अटैच्ड है। तो ये जो नाइट्रोजन बेस यहाँ पर अटैच है ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड के थ्रू, यहाँ पर जो बॉन्ड है वो है ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, ये वाला जो बॉन्ड है दिस इज द ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। अब ये डिपेंड करता है कि यहाँ पर कौन सा नाइट्रोजन बेस अटैच है, उसके बेसिस पर न्यूक्लियोसाइड का जो है वो नाम बनता है। तो अगर सपोज कर लिया जाए कि यहाँ पर जैसे एडेनाइन अटैच्ड है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ये एडेनाइन अटैच्ड है पेंटोज शुगर से, तो जो न्यूक्लियोसाइड का जो नाम होगा वो हो जाता है एडिनोसिन या डीऑक्सीराइबोस एडिनोसिन। और अगर ग्वानिन अटैच्ड है तो वो हो जाता है ग्वानोसिन, और अगर यहाँ पर जो है थाइमीन अटैच्ड है तो डीऑक्सीथाइमिडीन हो जाता है, यूरेसिल अटैच्ड है तो यूरिडिन हो जाता है नाम, और अगर साइटोसिन अटैच्ड है तो साइटिडिन हो जाता है। ये जो नाम मैंने बताए हैं ये न्यूक्लियोसाइड के नाम है। न्यूक्लियोसाइड मतलब जब तक के फॉस्फेट ग्रुप उसके ऊपर अटैच नहीं होगा तब तक के, मतलब सिर्फ नाइट्रोजन बेस और पेंटोज शुगर। तो बेस्ड ऑन नाइट्रोजन बेस हम अलग अलग टाइप के जो है वो न्यूक्लियोसाइड क्लासिफाई करते हैं। अब यहाँ अगर एडिनाइन है तो उसको कहेंगे एडिनोसिन, साइटोसिन अगर साइटोसिन है तो उसको हम कहेंगे साइटिडीन, और अगर यूरेसिल है तो यूरिडीन, और अगर थाइमीन है तो थाइमिडीन कहेंगे उसको, या डीऑक्सीराइबोथाइमिडीन, इस तरह से उसको नाम देते हैं। तो ये हुआ हमारा न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर, उसके कंपोनेंट्स हमने देखे। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। इसी पर देखते हैं हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। So this is the double helical structure of DNA। ये है अपना डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। हमको दोनों न्यूक्लिक एसिड पढ़ना है एक के बाद एक, डीएनए और उसके बाद में फिर हम लोग आरएनए देखेंगे। तो पहले हम लोग देखते हैं डीएनए। डीएनए जो होता है ये लॉन्ग पॉलीमर होता है। पॉलीमर मतलब के छोटे छोटे न्यूक्लियोटाइड से बनी हुई पूरी एक लॉन्ग चेन होती है, जैसा कि यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं। और आरएनए भी जो है वो भी पॉलीमर है, लेकिन वहां पर जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं वो राइबोस टाइप के शुगर रखने वाले होते हैं। तो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के अंदर अलग अलग लेंथ का डीएनए पाया जाता है। अब इन जनरल जो है हम लोग डीएनए की लेंथ को रिप्रेजेंट करते हैं बेस पेयर में।
जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये एक न्यूक्लियोटाइड है, ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड, अब इनके बीच में यहाँ पर जो है हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं, तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड की बेसिस पर इनके बेस पेयर बनते हैं, तो हम रिप्रेजेंट करते हैं बेस पेयर के फॉर्म में। अगर हम बोल रहे हैं कि किसी ऑर्गेनिज्म का डीएनए जो है वो 2000 बेस पेयर लॉन्ग है, तो इसका मतलब कि उसके अंदर 2000 बेसेस होंगे उसके पूरे डीएनए के लीनियर स्ट्रक्चर में। फिर फर्दर जो है डीएनए जो होता है, अगर हम प्रोकैरियोट्स की बात करते हैं बैक्टीरिया की, तो प्रोकैरियोट्स के अंदर जो डीएनए होता है वो लूप्स के फॉर्म में होता है, और वहां पर जो है वो न्यूक्लियस तो डिफाइंड होता नहीं है क्योंकि वो प्रोकैरियोट्स होते हैं, तो उनके अंदर जो डीएनए होता है वो डिफरेंट लूप्स के फॉर्म में होता है, इट इज कॉल्ड द न्यूक्लियोइड, उसको न्यूक्लियोइड बोला जाता है। और यूकैरियोट के अंदर जो डीएनए होता है वो न्यूक्लियस के अंदर होता है, और वो पार्ट बनाता है, कंडेंस रहता है, हाईली कंडेंस्ड फॉर्म होता है क्रोमोसोम के फॉर्म में। तो हम लोग पैकेजिंग के टाइम पर देखेंगे कि क्रोमोसोम जो है वो डीएनए से कैसे पैक होकर के बनते हैं। सो अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग जो है डीएनए के सीक्वेंसेस होते हैं। सो फॉर द मेमोरी यू हैव टू रिमेंबर, फॉर एग्जांपल बैक्टीरियोफाज के अंदर जो बैक्टीरियोफाज है, बैक्टीरियोफाज आर द वायरसेस, तो बैक्टीरियोफाज में जो 5174 बैक्टीरियोफाज जो होता है उसके अंदर 5386 न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होते हैं। ऐसे ही लैम्डा बैक्टीरियोफाज जो होता है, लैम्डा बैक्टीरियोफाज मतलब जो वायरस होता है, ये दोनों वायरसेस जो है वो इकोलाई को इन्फेक्ट करने वाले वायरसेस हैं। तो लैम्डा बैक्टीरियोफाज जो है उसके अंदर 48,502 बेस पेयर प्रेजेंट रहते हैं। फिर ऐसे ही लैम्डा बैक्टीरियोफाज का जो डीएनए होता है वो डबल स्ट्रैंडेड होता है, और 5174 का जो डीएनए होता है वो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। ई कोलाई के लिए जो है वो थोड़ा सा याद रखो, एक मॉडल ऑर्गेनिज्म है ई कोलाई, बहुत सारे रिसर्च पर्पस में यूज होता है, बैक्टीरिया एस्केरिचिया कोलाई, उसका जो डीएनए होता है 4.6 × 10⁶ बेस पेयर का होता है। और ह्यूमन का जो हैप्लॉइड डीएनए कंटेंट होता है ह्यूमन के हैप्लॉइड सेल के अंदर, वो होता है 3.3 × 10⁹ बेस पेयर का। सो दीज आर द फ्यू बेस पेयर्स गिवन, कुछ लेंथ दी हुई है कुछ ऑर्गेनिज्म के रिस्पेक्ट में, ये बताने के लिए कि डीएनए जो है वो कितना लेंथी हो सकता है। अभी नीट के एग्जाम्स में बहुत सारे क्वेश्चंस जो होते हैं वो मेमोरी बेस्ड होते हैं, तो इस तरह के कुछ क्वेश्चंस एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन भी पूछ लेते हैं। तो ये कुछ वैल्यू वाले क्वेश्चन हैं, कुछ वैल्यूज एंड फिगर वाले क्वेश्चंस हैं, जो आप इनको याद रखो डायरेक्ट कि कौन से ऑर्गेनिज्म में डीएनए जो है उसका बेस पेयर कितना है। Now we will see the polynucleotide structure. This is the typical eukaryotic DNA. ये typical eukaryotic DNA का structure है यहाँ पर। So first of all, जो structure of DNA है, it was discovered in 1953 by Watson and Crick. तो इसको हम लोग जो है Watson and Crick model of DNA कहते हैं, और इसको डिस्कवर किया गया था with the help of X-ray crystallographic technique। और जो एक्सरे क्रिस्टलोग्राफिक टेक्निक इंट्रोड्यूस की थी वो दो और साइंटिस्ट थे जिनका नाम था मॉरिस विल्किन एंड रोज़ेलिन फ्रैंकलिन। तो ये चार डिस्कवरर्स हैं जो कि डीएनए की डिस्कवरी में इन्वॉल्व हैं। इसमें जेम्स वॉटसन, फ्रांसिस क्रिक जो है वो उसके स्ट्रक्चर को उन्होंने बताया था, और मॉरिस विल्किन एंड रोज़ेलिन फ्रैंकलिन इन लोगों ने एक्सरे डिफ्रैक्शन या एक्सरे क्रिस्टलोग्राफिक टेक्निक को यूज करके उसको डिस्कवर किया। तो इन चारों साइंटिस्ट के नॉलेज को कोलैबोरेट करके फिर जो है ये स्ट्रक्चर बताया गया है। दिस इज द टिपिकल डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल ऑफ द डीएनए। नाउ अ डीएनए मॉलिक्यूल इट कंसिस्ट ऑफ अ डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। ये जो पार्ट हम देख रहे हैं ये पूरा ये थ्रेड जैसा, this is the helical structure and there are two helices, so it is a double helix structure and both of these two helix they are twisted over each other। दोनों helices जो है वो एक दूसरे के ऊपर ऐसे ट्विस्ट हैं, बल खाए हुए हैं एक दूसरे के ऊपर, and they are twisted around each other along
एन इमेजिनरी एक्सिस, सपोज कर लो यहां से जहां पर पॉइंटर है, यहां से अगर हम जो है वो एक हाइपोथेटिकली एक ऐसे लाइन अगर ड्रॉ करते हैं, आप पॉइंटर को देखिए, यहां से अगर हम हाइपोथेटिकली इस तरह से जो है वो एक लाइन अगर ड्रॉ करते हैं, तो कुछ पार्ट डीएनए का जो होता है इस हाइपोथेटिकल इमेजिनरी एक्सिस के नजदीक आता है और कुछ इससे दूर जाता है। जैसे यहां से अगर हम जो है वो ऐसे लाइन ड्रॉ करें, तो ये वाला लूप जो है वो थोड़ा दूर जा रहा है, ये वाला लूप उसके नजदीक आ रहा है, इस तरह से। तो ये ऐसा माना जाता है कि डबल हेलाइसिस, द डबल हेलिक्स ऑफ द डीएनए, दे आर वुंड अराउंड एन इमेजिनरी एक्सिस, एक इमेजिनरी एक्सिस के सराउंडिंग में ये ट्विस्टेड है। देन ईच न्यूक्लियोटाइड, ईच स्ट्रैंड, हर एक जो चेन है डीएनए की, इट इज मेड अप ऑफ न्यूक्लियोटाइड, जैसा अभी हमने देखा था न्यूक्लियोटाइड उससे बने हुए हैं। तो यहां पर ये जो डॉट लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हो, छोटा सा सर्कल जैसा, ये रिप्रेजेंट कर रहा है एक न्यूक्लियोटाइड को, ये रिप्रेजेंट कर रहा है दूसरे न्यूक्लियोटाइड को, ऐसे ही अल्टरनेट वाली चेन पर भी। तो ये न्यूक्लियोटाइड जैसे ये और ये, इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड होता है उसको कहते हैं फॉस्फोडाइईस्टर बॉन्ड। सो विद द हेल्प ऑफ दैट फॉस्फोडाइईस्टर बॉन्ड, ये जो इंडिविजुअल न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं ये एक दूसरे से अटैच्ड होते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द बैकबोन ऑफ द डीएनए, क्योंकि यही फॉस्फोडाइईस्टर बॉन्ड जो होते हैं ये पूरी चेन को मेंटेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सो दे आर कंसिडर्ड एज द बैकबोन ऑफ द डबल हेलिक्स और डबल हेलिकल डीएनए। ये एक समझो बैकबोन हो जाती है ये, और इसको कंसीडर किया जाता है ये जो बैकबोन या जो हेलिक्स है, और बीच में यहाँ पर जो ये बार लाइन जो देख रहे हैं हम लोग, जो हॉरिजॉन्टल लाइन दिखाई हुई है, दीज आर द नाइट्रोजन बेसिस। तो ये नाइट्रोजन बेसिस और ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, इनको मिला करके ऐसा कंसीडर करते हैं द डीएनए, डबल हेलिक्स डीएनए, इट इज अ ट्विस्टेड लैडर लाइक स्ट्रक्चर। तो ये जो है वो एक तरह से ट्विस्टेड लैडर लाइक स्ट्रक्चर होता है, और इसके अंदर जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती है ये पोल की तरह काम करती है। जैसे अपना जो लैडर होता है, सीढ़ी जो होती है, उसके अंदर दो साइड पोल होते हैं और बीच में जो है वो हॉरिजॉन्टल बार्स होते हैं। तो वो जो हॉरिजॉन्टल बार्स होते हैं उनको रंग्स बोला जाता है। तो यहां पर जो है ये जो साइड की पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, ये यहां पर पोल की तरह है, और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस देख रहे हैं जो कि नाइट्रोजन बेस की बॉन्डिंग है, दे आर कंसिडर्ड एज द रंग्स ऑफ द डीएनए, और इनको रंग्स बोलते हैं, ये उसकी बैकबोन है, पोल लाइक। देन यहां पर ईच न्यूक्लियोटाइड, जैसे ये वाला न्यूक्लियोटाइड है, ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड है, तो हर न्यूक्लियोटाइड एक दूसरे से 3 प्राइम 5 प्राइम फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से जुड़ा हुआ रहता है। मतलब कि ये वाले न्यूक्लियोटाइड का थर्ड वाला कार्बन इस वाले न्यूक्लियोटाइड के फिफ्थ वाले कार्बन से जुड़ा हुआ होगा। अभी हम इसका केमिकल स्ट्रक्चर भी देखेंगे कि 3 प्राइम 5 प्राइम फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कहां पर एग्जिस्ट करते हैं, तो यहां पर अभी ये याद रख लो पहले। नेक्स्ट जो है यहां पर हम देख रहे हैं नाइट्रोजन बेस बीच में। तो जो नाइट्रोजन बेस होते हैं ये दोनों ट्विस्टेड हेलिक्स के अंदर प्रोजेक्टेड होते हैं, दे आर लोकेटेड इनसाइड। मतलब इसको अगर हम लोग जो है सामने से देखेंगे तो ये दोनों चेन 3 डायमेंशनली एक सर्कल बनाएंगे, और इसके अंदर इस सर्कल जैसे स्ट्रक्चर के अंदर नाइट्रोजन बेसेस जो होते हैं ये प्रोजेक्टेड होते हैं। सो द बेस पेयरिंग यहां पर दिखाया हुआ है, बेस पेयर लिखा हुआ है। नाइट्रोजन बेसेस जो होते हैं वो हमेशा एक दूसरे से कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर के फॉर्म में अटैच्ड रहते हैं, और जो कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग होती है वो हमेशा एक प्यूरीन और एक दूसरे पायरिमिडीन के बीच में बनती है। सो ऑलवेज वन प्यूरीन बेस अटैच्ड विद अनदर पायरिमिडीन बेस। अब यहाँ पे जो कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग होती है प्यूरीन और पायरिमिडीन की, ये ऑलवेज होती है एडेनाइन और थायमिन के बीच में, और अगर इस तरफ साइटोसिन है तो यहाँ पर ग्वानिन। तो ए और टी और सी और जी, और ये हमको याद रखना है कि एडेनाइन और थायमिन के बीच में जो बेस पेयर बनता है वो डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। सो ए डबल हाइड्रोजन बॉन्ड विथ टी एंड सी ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड विथ जी।
मतलब साइटोसिन जो है वो ग्वानिन से 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा हुआ रहता है। यहाँ पर ये जो बीच में बॉन्ड दिख रहे हैं ये हाइड्रोजन बॉन्ड से, और एडेनाइन थाइमिन से जो है वो डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा हुआ रहता है। कभी कभी बॉन्ड के ऊपर जो है वो क्वेश्चन आता है, प्रीवियस एग्जाम्स में पूछा है, तो मेन जो है वो 3 इंपॉर्टेंट बॉन्ड्स आपको यहाँ पर याद रखने हैं। जो पहला है वो है नाइट्रोजन बेस और पेंटोज शुगर के बीच का बॉन्ड, इट इज कॉल्ड ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड और एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, दोनों बोल सकते हैं। दूसरा जो बॉन्ड है वो है एक न्यूक्लियोटाइड और दूसरे उसके सब्सिक्वेंट न्यूक्लियोटाइड के बीच में, मतलब दो बाजू बाजू के न्यूक्लियोटाइड के बीच में। ये जो बॉन्ड है इट इज कॉल्ड फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, या इसी को 3 प्राइम 5 प्राइम फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड भी बोलते हैं। तीसरा जो बॉन्ड है वो है नाइट्रोजन बेसेस के बीच में। तो नाइट्रोजन बेसेस के बीच में जो है हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। अब इसमें एडेनाइन और थायमिन के बीच में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, और साइटोसिन और ग्वानिन के बीच में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड, ये इस तरह से प्रेजेंट रहते हैं और ये प्रोजेक्टेड होते हैं इसके दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन के अंदर। देन नेक्स्ट जो चीज है इसी को हम कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग भी बोलते हैं, ए डबल बॉन्ड टी सी ट्रिपल बॉन्ड जी, इट इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग। नेक्स्ट जो है वो है प्यूरिन और पायरिमिडिन का रेशो, मतलब नंबर ऑफ प्यूरिन बेस एंड नंबर ऑफ पायरिमिडिन बेस, इनका जो रेशो होता है इसको सबसे पहले आइडेंटिफाई किया था एरविन चरगाफ ने। तो इसको जो है वो चरगाफ्स रेशो या चरगाफ्स रूल भी कहते हैं। तो जो चरगाफ्स रेशो या चरगाफ रूल होता है वो ये स्टेट करता है कि नंबर ऑफ प्यूरिन एंड नंबर ऑफ पायरिमिडिन बेस जो होंगे किसी गिवन स्पीशीज ऑफ डीएनए के लिए वो कांस्टेंट होंगे, मतलब उनका रेशो जो होगा वो 1 होगा। और हम बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ प्यूरिन बेसेस आर इक्वल टू नंबर ऑफ पायरिमिडिन बेसेस। तो इस बेसिस पर A प्लस जी एडेनाइन प्लस ग्वानिन मतलब प्यूरिन हो गया, और ये इक्वल रहेंगे थायमिन प्लस साइटोसिन के। और क्योंकि हमेशा जहां जहां एडेनाइन आता है तो उसके सामने जो है वो थायमिन भी आता है, तो इसके लिए नंबर ऑफ एडेनाइन आर इक्वल टू नंबर ऑफ थायमिन एंड नंबर ऑफ साइटोसिन बेसेस आर इक्वल टू नंबर ऑफ ग्वानिन बेसेस। तो इसको कहा जाता है चरगाफ्स रूल या चरगाफ्स रेशो। कभी ऐसा होता है एग्जाम में कि चरगाफ्स रूल के ऊपर और चरगाफ्स रेशो के ऊपर जो है कुछ छोटे छोटे जो है वो न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन भी जो है पेपर में आते हैं। पर्टिकुलरली महाराष्ट्र सीटी के अंदर ऐसा देखा गया है कि इसके ऊपर जो है कई बार क्वेश्चन आए हैं। नीट के अंदर और AIPMT के अंदर जो है वो रेयरली पूछे जाते हैं इस तरह के क्वेश्चन, बट फिर भी कुछ प्रीवियस एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चंस जो है वो देखे गए हैं। आपके प्रैक्टिस क्वेश्चंस के अंदर भी इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस इंक्लूडेड हैं। उसमें नाइट्रोजन बेसिस में कोई एक नाइट्रोजन बेस दिया हुआ होता है, जैसे एडेनाइन दे दिया है तो आउट ऑफ टोटल 100 दिया है उसमें से एडेनाइन 20 दिया है, तो बाकी के न्यूक्लियोटाइड जो है मालूम करने के लिए कहा जाता है। तो हम चरगाफ्स रेशो की बेसिस पर जो है बाकी के न्यूक्लियोटाइड जो है निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है यहां पर हम देख सकते हैं स्ट्रैंड के एंड पर पोलैरिटी लिखी हुई है। पोलैरिटी का मतलब होता है कि किस तरफ जो है किसी स्ट्रैंड का 3 प्राइम कार्बन या 5 प्राइम कार्बन फ्री है उसकी बेसिस पर। दिस इज कॉल्ड एज द पोलैरिटी। नाउ दिस इज द 3 प्राइम एंड ऑफ दिस स्ट्रैंड। तो ये 3 प्राइम एंड का मतलब ये है कि यहां पर जो है जो भी न्यूक्लियोटाइड लास्ट रहा होगा इस जगह पर इस चेन का, उसका थर्ड वाला कार्बन फ्री है, वो किसी के साथ में बॉन्डेड नहीं है। तो ये जो एंड बनता है इट इज कॉल्ड एज द 3 प्राइम एंड। और इसी चेन को ट्रेस करते हुए अगर हम लोग जो है वो यहां पर आते हैं तो यहां इस तरफ जो भी लास्ट न्यूक्लियोटाइड होगा वो लास्ट न्यूक्लियोटाइड का यहां पर 5th वाला कार्बन फ्री होगा इस पॉइंट पर। तो वो 5th वाला कार्बन जो है इस फ्री होने की बेसिस पर इसको हम कहते हैं 5 प्राइम एंड। सो 3 प्राइम एंड 5 प्राइम एंड ये दोनों जो है ये पोल्स हो गए, इस पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन के 2 पोल्स हो गए। ऐसे ही अगर हम इसके अपोजिट दूसरी वाली चेन देखेंगे तो इस चेन के 5 प्राइम एंड के सामने यहाँ पर 3 प्राइम एंड है। सिमिलरली दिस चेन इट एंड्स विद द 5 प्राइम एंड। सो द 3 प्राइम एंड ऑफ one nucleotide chain it faces the 5 prime end of other nucleotide chain. Similarly यहाँ पर भी the 5 prime end of one nucleotide chain faces
द 3 प्राइम एंड। सो दिस इज द पोलैरिटी, ये अपोजिट पोलैरिटी है। यहाँ पर ये जो पोलैरिटी है दिस इज द अपोजिट पोलैरिटी एंड दिस अरेंजमेंट, ये जो पूरा अरेंजमेंट हम देख रहे हैं 3 प्राइम और 5 प्राइम एक दूसरे के अपोजिट आना, इसको हम कहते हैं एंटी पैरेलल अरेंजमेंट। एंटी पैरेलल अरेंजमेंट, यहाँ पे पैरेलल का वो मतलब नहीं है जो हम अपने मैथमेटिक्स में या ज्योमेट्री में लेते हैं कि दो लाइन जो एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट ना करें उनको हम पैरेलल बोलते हैं। तो आप यहाँ पर देख रहे, आप यहाँ पर कहेंगे कि यहाँ पर से तो ये ट्विस्ट हो गया है, तो यहाँ पे पैरेलल का मतलब ये पोलैरिटी को लिया गया है, पोलैरिटी के सेंस में लिया गया है। सो दिस इज एंटी पैरेलल अरेंजमेंट ऑफ चेन, न्यूक्लियोटाइड चेन। देन नेक्स्ट जो है, जब ये एक दूसरे पर ट्विस्ट होते हैं, ये ऐसे यहाँ पर ट्विस्ट जहां पर हो रहे हैं, ये पॉइंट पर देख सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं, तो जब ये ट्विस्ट होते हैं तो कहीं पर जो इनका ट्विस्टिंग डिस्टेंस होता है, ये इतना पार्ट, ये डिस्टेंस देख लो, और यहाँ पर इसके अपोजिट ये वाला डिस्टेंस, तो ये जो डिस्टेंस होता है, ये कहीं पर ये जो लूप होता है, ये जो ग्रुप जो यहाँ पर बन रहा है, यहाँ पर हम देख रहे हैं स्लिट लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है, यहाँ पर जो है ये एक और डीप स्लिट लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है। तो कहीं ये जो स्लिट लाइक स्ट्रक्चर है ये थोड़ा शैलो है, शैलो का मतलब ये उभरा हुआ है, अगर हम लोग यहाँ से जो है वो इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं तो उस इमेजिनरी एक्सिस से दूर जा रहा है। तो ये जो शैलो टाइप का जो ग्रूव होता है, मतलब यहाँ पर ये और ये पॉइंट के बीच में डिस्टेंस कम है, तो इसको हम शैलो ग्रूव कहते हैं, या इसी को टेक्निकली कहा जाता है माइनर ग्रूव। माइनर ग्रूव, तो ये जो माइनर ग्रूव की जो थिकनेस होती है, इसकी जो पिच होती है, ये होती है 12 एंगस्ट्रॉम, ये होती है 12 एंगस्ट्रॉम। ऐसे ही इसके अपोजिट साइड देख सकते हैं यहाँ पर, या इसके नीचे यहाँ पर अल्टरनेट, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो ग्रुप है ये बहुत फैला हुआ है, ये और ये जो श्रिंक है दोनों के बीच में जो ट्विस्ट है ये बहुत डीप जा रहा है। सो इट इज अ डीप ग्रुप, ये वाला शैलो था, ये वाला डीप है, ये एक्सिस से इस अवे या एक्सिस के दूसरे डायरेक्शन में जा रहा है। दिस इज कॉल्ड द मेजर ग्रूव, इसको हम कहते हैं मेजर ग्रूव। सो दिस इज माइनर ग्रूव एंड दिस इज द मेजर ग्रूव। इसकी जो पिच होती है या जो इसकी जो डेप्थ होती है वो होती है 22 एंगस्ट्रॉम यूनिट। ये दोनों वैल्यू जो है हम ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू इमेजिनरी एक्सिस। तो एक माइनर ग्रूव दूसरे मेजर ग्रूव के साथ में अल्टरनेट करता है, मतलब यहां पर हम देखेंगे तो माइनर ग्रूव है तो उसके नेक्स्ट फौरन बाद में मेजर ग्रूव होगा, और इस माइनर ग्रूव के ऊपर यहां पर जो है मेजर है, तो मेजर माइनर इस तरह से ऐसे अल्टरनेट जो है वो ग्रूव्स होते हैं। और माइनर ग्रूव के अपोजिट साइड में, जैसे ये माइनर ग्रूव है तो इसके अपोजिट इस तरफ यहां पर हमको मिलेगा मेजर ग्रूव, और यहां मेजर ग्रूव के अपोजिट साइड में हमको मिल जाएगा माइनर ग्रूव। तो ये इस तरह से अल्टरनेट और अपोजिट ग्रूव्स का अरेंजमेंट है, मेजर और माइनर ग्रूव है। ये बेस्ड है उनके डिप्रेशन पर विद रिस्पेक्ट टू द इमेजिनरी एक्सिस, उसके बेस पर। नाउ द नेक्स्ट, यहाँ पर कुछ और वैल्यूज जो है वो लिखी हुई हम लोग देख रहे हैं, दीज आर कॉल्ड एज द डायमेंशंस ऑफ डीएनए। इनको हम जो है वो डीएनए का डायमेंशन कहते हैं। तो ये जो फर्स्ट डायमेंशन है, ये वाला डायमेंशन, मतलब ये यहां से अगर हम ऐसे लाइन ड्रॉ करते हैं, ये यहां पर आप देख सकते हैं, ये इस लाइन को अगर हम ऐसे आगे एक्सटेंड करते हैं पूरा ये ऐसा मार्जिन तक, और इसको यहां से ऐसे आगे एक्सटेंड करते हैं, तो ये बनाता है डीएनए का डायमीटर। सो दिस इज एक्चुअली द डायमीटर ऑफ द डीएनए, और ये होता है 20 एंगस्ट्रॉम यूनिट, या अगर इसको हम नैनोमीटर में देखें तो ये होता है 2 नैनोमीटर। तो दोनों वैल्यूज याद रखना है, 20 एंगस्ट्रॉम यूनिट और नैनोमीटर में करने के लिए डिवाइडेड बाय 10 करना है। 1 नैनोमीटर 10⁻⁹ मीटर के इक्वल होता है, और 1 एंगस्ट्रॉम 10⁻10 मीटर के इक्वल होता है। तो ये होता है डीएनए का डायमीटर 20 एंगस्ट्रॉम और 2 नैनोमीटर। फिर उसके बाद में नेक्स्ट जो है वो है दो मेजर या दो माइनर ग्रुप के बीच का डिस्टेंस। तो जैसे मान लो यहां पर इसको जो है वो एक मेजर ग्रुप लिया, दिस इज 1 मेजर ग्रुप, दिस इज अनदर मेजर ग्रुप, मतलब ये वाला पॉइंट जो है दूसरा मेजर ग्रुप है, ये ऊपर का पॉइंट जो है वो एक मेजर ग्रुप है। तो दो कॉन्जिक्यूटिव और 2 कॉन्जिक्यूटिव मेजर ग्रुप
या टू कॉन्जिक्यूटिव माइनर ग्रुप के बीच का जो डिस्टेंस है, इट इज कॉल्ड एज वन स्पाइरल ऑफ द डीएनए. You should remember these terms because in the exam they ask the question using technical terms. Technical terms को use करके questions पूछते हैं. तो the distance between two consecutive major group or two consecutive minor group, it is called as the one spiral of the DNA, and it is also called as the pitch of the DNA. हम इसको DNA की pitch भी कहते हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है, और इसी को जो है वो एक स्पाइरल कहते हैं. तो एक स्पाइरल कितना होता है, जैसे कि अगर आप इस तरह से ट्विस्टेड लेडर जो होती है, अगर आप मान लो यहाँ पर खड़े हैं इस पॉइंट पर और नीचे की तरफ देखते हैं, तो आपको जो है ये वाला पॉइंट नजर नहीं आएगा. यहाँ पर खड़े रहकर अगर हम नीचे देखते हैं तो हमको डायरेक्ट इधर का ये वाला पॉइंट नजर आएगा. तो हम जहां पर खड़े हैं और नीचे देख रहे हैं, फौरन हमको जो स्पाइरल का जो पॉइंट दिख रहा है, तो हमारे खड़े रहने से लेकर के हमको नजर आने वाले स्पाइरल के पॉइंट तक का जो डिस्टेंस होता है, इट इज कॉल्ड एज वन स्पाइरल और वन पिच ऑफ डीएनए. और इसकी जो लेंथ होती है ये टिपिकली होती है 34 एंगस्ट्रॉम यूनिट. याद रखो, हम जो डीएनए डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे, दिस इज द वाटसन क्रिक डीएनए. डीएनए के और भी अलग अलग जो है वो मॉडल्स हैं, अलग अलग टाइप हैं. ये जो डीएनए है, दिस इज वाटसन, टिपिकल वाटसन क्रिक डीएनए, और इसी को जो है वो बी डीएनए भी कहा जाता है. अलग अलग टाइप के जो डीएनए होते हैं, ए डीएनए, बी डीएनए, जेड डीएनए, सी डीएनए भी होता है. तो सबके ये जो स्पाइरल लेंथ होती है थोड़ा थोड़ा कम ज्यादा होती है. तो हमको टिपिकली जो है वो बी डीएनए के लिए याद रखना है यहाँ से लेके यहाँ तक का. सो दिस इज वन स्पायर और वन पिच ऑफ द डीएनए. ये डीएनए की एक पिच है, इसका डिस्टेंस है 34 एंगस्ट्रॉम यूनिट. And now the next is the distance between two successive hydrogen bond or two successive nitrogenous base. ये दोनों, जैसे देखो ये एक नाइट्रोजन बेस पेयर है और ये दूसरा बेस पेयर है. तो दो कॉन्जिक्यूटिव बेस पेयर के बीच का जो डिस्टेंस होता है, यहाँ पर कोई भी दो ले सकते हैं, ये दोनों ले सकते हैं, ये दोनों, या फिर ये दोनों यहाँ पर दिखाया हुआ है, ये एरो मार्क है. तो the distance between two successive nitrogen base, it is 3.4 angstrom unit और 0.34 नैनोमीटर. दोनों वैल्यूज याद रखो, क्योंकि पेपर में कभी जो है वो नैनोमीटर, कभी एंगस्ट्रॉम यूनिट, या कुछ वैल्यू नैनोमीटर में, कुछ वैल्यू एंगस्ट्रॉम यूनिट में पूछते हैं, तो हमको याद रखना है. सो यहाँ the distance between two nitrogen base, it is 3.4 angstrom unit. और इस बेसिस पर हम देख सकते हैं कि एक स्पाइरल जो है ये 34 एंगस्ट्रॉम का है, और दो कॉन्जिक्यूटिव नाइट्रोजन बेस के बीच में जो गैप है, जो डिस्टेंस है, वो 3.4 या 0.34 नैनोमीटर, 3.4 एंगस्ट्रॉम 0.34 नैनोमीटर का है. तो इस बेसिस पर हम यहाँ पर एक स्पाइरल या एक पिच के अंदर टोटल कितने नाइट्रोजन बेस और या के बेस पेयर्स आते हैं ये हम मालूम कर सकते हैं. तो हम यहाँ पर सिंपली क्या करते हैं कि जो ये डिस्टेंस है हमारा, वन पिच जो है डीएनए की, वन स्पाइरल डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव नाइट्रोजन बेस, मतलब दो नाइट्रोजन बेस के बीच का डायरेक्ट डिस्टेंस, इससे हम इस स्पायर को डिवाइड करते हैं. तो हमको मिल जाते हैं टोटल नंबर ऑफ नाइट्रोजन बेस पेयर्स विच आर प्रेजेंट इन वन स्पाइरल. तो हम अगर इसमें यहाँ पर डिवाइड करते हैं 34 को 3.4 से, तो हमको ये वैल्यू मिलती है 10. सो देयर आर, वी कैन से 10 बेस पेयर्स प्रेजेंट यहाँ पर, इसके बीच में 10 बेस पेयर्स एक स्पाइरल में या एक डीएनए की पिच में प्रेजेंट रहते हैं. ये सारी चीजें जो है वो आपको काम आएंगी अगर नंबर बेस्ड या कुछ वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन कभी एग्जाम में आए. तो महाराष्ट्र सीईटी एग्जाम में तो बहुत पूछते हैं इसके ऊपर क्वेश्चन, कई बार प्रीवियस एग्जाम के पेपर अगर आप देखेंगे तो उसमें कई बार पूछे गए हैं और हर साल ही पूछे जाते हैं. पीएमटीज में भी पूछे गए हैं, कई जगह पर अलग अलग स्टेट पीएमटी में पूछे गए हैं, और इवन नेशनल पीएमटी के अंदर भी जो है वो इसके ऊपर क्वेश्चंस आए हैं. सो ये है अपना पूरा स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए. सो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए हमने यहाँ तक का जो है स्टडी किया है. कुछ सैलिएंट फीचर्स जो एनसीईआरटी में दिए हुए हैं वो भी आपको याद रखने हैं. तो सैलिएंट फीचर्स में सबसे
पहला जो सेलिएंट फीचर है वो यही है कि डबल न्यूक्लियोटाइड है, जो हमने पढ़ा है एक्चुअल में वो सब सेलिएंट फीचर्स ही हैं यहाँ पर। और दो चेन एक दूसरे के एंटी पैरेलल होते हैं, मतलब एक 5 to 3 रन करती है और एक दूसरी जो है वो 3 to 5 रन करती है। दोनों चेन जो है वो एक दूसरे से जब कॉइल करते हैं तो ये जो कॉइलिंग का फैशन जो होता है इट इज कॉल्ड एज द राइट हैंडेड कॉइलिंग। ये राइट हैंडेड कॉइलिंग होती है, मतलब अगर हमको कॉइल को ओपन करना है तो हमको जो है लेफ्ट साइड में अगर उसको हम घुमाएंगे तो वो ओपन होगा। तो ये जो कॉइलिंग है यहाँ पर, जो कॉइलिंग जो टर्निंग हम देख रहे हैं इट इज कॉल्ड एज द राइट हैंडेड कॉइलिंग। और राइट हैंडेड का मतलब होता है क्लॉकवाइज कॉइलिंग, मतलब ये क्लॉकवाइज घुमा है तो ये कॉइल हुआ, अगर इसको हमको अनवाइंड करना है तो एंटी क्लॉकवाइज घुमाना होगा ये चेन को, तो ये अनवाइंड हो जाएगी। सो इट इज राइट हैंडेड। तो जो डीएनए अब तक के डिस्कवर्ड है, अलग अलग जो मॉडल डीएनए के डिस्कवर्ड है उसके अंदर जो जितने भी डीएनए हैं ऑल द डीएनए दे आर द राइट हैंडेड डीएनए एक्सेप्ट जेड डीएनए। तो सिर्फ जेड डीएनए ऐसा है जो लेफ्ट हैंडेड कॉइलिंग शो करता है। तो यहाँ पर ये जो है ये वाटसन क्रिक वाला राइट हैंडेड कॉइलिंग जो है वो शो कर रहा है। और पिच मैंने बताया 3.4 एंगस्ट्रॉम की याद रखो, या 0.34 नैनोमीटर की पिच याद रखो। अब हम इसका जो है वो केमिकल स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं नेक्स्ट इसके डायग्राम में। हाँ सो दिस इज द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द टू स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए। ये है केमिकल नेचर उसका, मतलब यहाँ पर थोड़ा ज्यादा और एक्सपांड करके बताया गया है कि कैसे जो है वो नाइट्रोजन बेस एक दूसरे के साथ में कॉम्प्लीमेंट्रीली बॉन्डेड होते हैं, वो यहाँ पर दिखाया गया है। सो दिस इज वन पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन ये वाली, और ये जो है ये दूसरी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है। तो दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स यहाँ हम देख रहे हैं, दोनों की पोलैरिटी भी यहाँ पर हम देख सकते हैं। दिस इज 5 प्राइम और इसके अपोजिट में यहाँ पर है 3 प्राइम। तो डीएनए का स्ट्रक्चर है तो इसके लिए डीऑक्सीराइबोस, जितने भी शुगर यहाँ पर देख रहे हैं ऑल द शुगर्स दे आर डीऑक्सीराइबोस पेंटोस शुगर्स। ना यहाँ पर दिस इज द फर्स्ट कार्बन, देख सकते हैं आप यहाँ पे फर्स्ट, ये वाला नंबरिंग तो नहीं किया है बट ये है फर्स्ट कार्बन। और इस तरफ जो है यहाँ पर ये वाला फर्स्ट कार्बन है। ये जो पूरी चेन है इसको यहाँ पर ऐसा उलट के नीचे की तरफ, यानी यहाँ पर जो ऑक्सीजन है ये ऊपर की तरफ है और यहाँ पर ऑक्सीजन यहाँ पर नीचे की तरफ है। ऑलवेज याद रखो जो ऑक्सीजन का डायरेक्शन होता है पेंटोस शुगर का वो फेस करता है 5 प्राइम एंड को। ये भी पूछ चुका है एग्जाम में क्वेश्चन कि जो ऑक्सीजन होते हैं वो किसको फेस करते हैं, 5 प्राइम एंड को करते हैं, 3 प्राइम एंड को करते हैं, या दोनों को करते हैं, या किसी को फेस नहीं करते। तो ऑक्सीजन जो होते हैं दे फेस 5 प्राइम। यहाँ देख सकते हैं ये पॉइंट 5 प्राइम, ये 5 प्राइम एंड को ही सारे ऊपर की तरफ फेस कर रहे हैं, यहाँ पर भी नीचे 5 प्राइम एंड को फेस कर रहे हैं। और जो बॉन्ड है यहाँ पर देखो ये 5 प्राइम एंड है, तो इस न्यूक्लियोटाइड का ये वाला, ये जो जहां पर मेरा पॉइंटर है ये है उसका थर्ड कार्बन, पहले न्यूक्लियोटाइड का थर्ड कार्बन, और ये दूसरे न्यूक्लियोटाइड का यहाँ पर है 5th कार्बन फॉस्फेट ग्रुप के साथ में जो अटैच्ड है। तो एक थर्ड और एक 5th के बीच में जो है बॉन्डिंग बनती है। तो यहाँ जो ये जो इतना बॉन्ड है ये यहाँ पर जो मैं सर्कल बना रहा हूँ पॉइंटर से, आप उसको गौर करें, बीच में ये फॉस्फेट ग्रुप है, ये जो पिंक कलर का स्पॉट है। तो ये पूरा जो इतना बॉन्ड है दिस इज कॉल्ड एज फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, मतलब ये एक तरह का ईस्टर बॉन्ड है जिसके बीच में फॉस्फेट ग्रुप आया है। सो देयर आर 2 ईस्टर बॉन्ड हेल्ड विथ 1 फॉस्फेट, सो इट इज कॉल्ड फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। आपको पता है ईस्टर बॉन्ड कैसा होता है, एक अल्किल ग्रुप और बीच में जो है वो ऑक्सीजन ROR। तो यहाँ पर इसको जो है एक नाइट्रोजन बेस जो है पूरा जो पेंटोस शुगर जो है यहाँ पर इसको कंसीडर किया है एज 1 अल्किल और इसको दूसरा अल्किल, और बीच में यहाँ पे O की जगह पे ROR की जगह पे यहाँ पे O की जगह पे फॉस्फेट ग्रुप है। सो इट इज द फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, मतलब ईस्टर का जो ऑक्सीजन है ROR में जो ऑक्सीजन है उसको रिप्लेस किया है फॉस्फेट से। सो इट इज डाईस्टर हेल्ड विथ अ फॉस्फेट। तो बॉन्ड के ऊपर मैं बहुत जोर इसलिए दे रहा हूं क्योंकि बॉन्ड के ऊपर क्वेश्चन बहुत बार आया है।
तो ऐसे ही यहाँ पर ये जितने भी बॉन्ड्स हैं सभी फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज से ये एक दूसरे से हेल्ड है, इसी को हम लोग बैकबोन ऑफ द डीएनए भी कहते हैं। फर्स्ट वाले कार्बन पर ये जो बॉन्ड है ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है, यहाँ पर ये नाइट्रोजन बेस अटैच है, ये देख सकते हैं एडेनाइन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन ये सब अटैच्ड है फर्स्ट वाले कार्बन से। इसके अपोजिट एंटी पैरेलल चेन यहाँ पर है, देखो यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग, यहाँ पर भी ये फर्स्ट वाला ही कार्बन है और नाइट्रोजन बेस उसी से अटैच है, बस ये यहाँ पर इसको उल्टा करके दिखाया क्योंकि दूसरी वाली चेन अपोजिट होती है, क्योंकि यहाँ पर इसके 5 के सामने इसका 3 प्राइम एंड आना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं एक नाइट्रोजन बेस, यहाँ पर एडेनाइन है, यहाँ पर थाइमिन है, तो दो यहाँ पर जो है वो लाइन दिखाई गई है, दिस इज द डबल बॉन्ड। और ये जो डबल बॉन्ड है दिस इज डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, ये डबल हाइड्रोजन बॉन्ड है। और यहाँ पर ग्वानिन साइटोसिन के बीच में 3 लाइंस दिखाई गई हैं, दिस इज द ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड, ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड है। ये भी याद रखिए, आप याद रख लीजिए, क्योंकि कभी कभी जो है वो एक सीक्वेंस ऑफ द डीएनए देता है या एक डिस्टेंस देता है या कुछ बेस पेयर देता है और फिर बेस पेयर देने के बाद में पेपर में पूछते हैं कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड इस सेगमेंट में कितने प्रेजेंट होंगे, तो ये इस तरह से भी पूछते हैं। तो ये नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड ए और टी के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड है, ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में जो है ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड है यहाँ पर। सो दिस इज द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ द डीएनए, ये केमिकल स्ट्रक्चर, ये पूरा यहाँ पर एक हाईलाइट करके दिखाया हुआ, दिस इज 1 न्यूक्लियोटाइड, ये पूरा का पूरा एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड है। तो ये एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड जिसमें एक पेंटोज शुगर, फॉस्फेट ग्रुप और एक नाइट्रोजन बेस है कोई भी। तो ये इस तरह से ये इसका केमिकल स्ट्रक्चर है। ये जो डायग्राम यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं ये सेम डायग्राम है जो आपके एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। यहाँ पर बॉन्ड को दिखाया हुआ है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कहाँ पर है, ये यहाँ पर दिखाया हुआ है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पर है और ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है। तो पेपर में कभी इस तरह से भी हो सकता है कि पूरा का पूरा ऐसा ही डायग्राम जो है वो पूछ दें, बना के दे दें, और जहाँ पर बॉन्ड्स दिखाए हुए यहाँ पर ए, यहाँ पर बी, यहाँ पर सी, इस तरह से जो है वो दे दे और नीचे उसकी की दे दे कि ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, आइडेंटिफाई करो। तो आप इस डायग्राम को एक बस नज़र ऐसे देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कहाँ कहाँ पर कौन कौन से बॉन्ड प्रेजेंट है। डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस जो आते हैं पेपर में उसमें वेरिएशन नहीं करते हैं, जैसा डायग्राम एनसीईआरटी में दिया है सेम डायग्राम जो है वो पूछते हैं। ओके, ये एक और स्ट्रक्चर है, डीएनए का एक डायग्राम है यहाँ। तो यहाँ पर देखेंगे ये है एक्सरे डिफ्रैक्शन फोटोग्राफ, बस ये हम ऐसे ही देख ले रहे हैं, कोई इतना सिग्निफिकेंट डायग्राम नहीं है। तो ये एक्सरे डिफ्रैक्शन टेक्निक से जब उसको आइडेंटिफाई किया गया था तो ये डार्क और लाइट पैटर्न के फॉर्म में नज़र आ रहा था डीएनए। तो इसके बेसिस पर बाद में फिर उसको वॉटसन एंड क्रिक की नॉलेज और जो कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग की नॉलेज है उससे कंबाइन करके फिर जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है वो आइडेंटिफाई किया गया था। तो ये जो एक्सरे डिफ्रैक्शन वाला डायग्राम है इसको डेवलप किया था मॉरिस विल्किन और रोज़ैलिंड फ्रैंकलिन ने। तो यहाँ तक के जो है वो हमने अपना डीएनए का जो स्ट्रक्चर का टॉपिक था वो कंप्लीट किया है। नेक्स्ट हम लोग जो है जो टॉपिक रहेगा हमारा वो होगा पैकेजिंग ऑफ द डीएनए, मतलब डीएनए जो है वो किस तरह से पैक्ड होता है वो, और फिर हम सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल पढ़ेंगे, मतलब कि डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल कब इस्टेब्लिश हुआ और उसको कैसे सर्च किया गया। ओके, सो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे इसके आगे का पार्ट।